So, hello folks, good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Myself, Dhruv Maheshwari. I welcome you all in this today's video. So, let's start. In today's video, we are going to do a brief discussion about the upcoming IPO of All Time Plastics Limited. So, let's start. The offer is going to open on 7th of August and it's going to close on 11th of August. The tentative date of allotment is 12th of August and tentative date of listing is 14th of August. The company is bringing this issue at the price band of 260 to 275. The lot size is of 54 shares for retail, and for SHNI category it consists of 756 shares which amounts up to 2,07,900 rupees, and for BHNI category it consists of 3,672 shares which amounts up to 10,09,800 rupees. The total issue size of the offer is 400.60 crore rupees, which means the fresh issue is of 280 crores and offer for sale is of 120.60 crores. The face value per share is of rupee 2. The lead managers of this issue are Intensive Financial Services Private Limited and DAM Capital Advisors Limited, formerly known as IDFC Securities Limited. The registrar of the issue is KFintech. So now look at the company and its overview. The company was founded in 1971. It is engaged in manufacturing of plastic housewares both as white label suppliers to global retailers via its own brand name, that is All Time. As of 31st March 2025, ATPL offered 1848 SKUs across 8 key categories including prep time, containers and bath time. It has very long partnerships with some big players of global market like IKEA, Asda, Michaels and Tesco. It has a huge demand in foreign markets like European Union, United Kingdom and USA. It has huge revenue from exports also. So now look at its financials. The financials of the company are as follows. The revenue is increasing at a very good pace. In 2023, it was 443.80 crores, but in 2025, it is 559.20 crores, which means there is a substantive growth in revenue. And PAT was 28.30 crores in FY 2023, which has increased till 47.30 crores in FY 2025, which means there is also around 90% growth, around 85 to 90% growth in PAT margins. EBITDA margins are also looking very nice. But disclaimer is that there was a very frequent growth between FY 2023 to FY 2024. There is not a really serious growth in FY 2024 and 2025. Actually, the revenue was 515.90 crores in FY 2024, which has only increased till 559.20 crores in FY 2025, which means there is not a very substantial growth in revenue in FY 25. But the growth was in FY 2024. This is the point, and this is for all the margins. Like PAT was also increased around 18 crore rupees in FY 2024. EBITDA margins were also increased in FY 2024. Therefore, we can say that maybe there was some big deals or some big growth opportunities for company in FY 2024. The net borrowings of the company is also increasing in FY 2025. The company is currently having borrowings of 218.50 crores, which was 142.40 crores in FY 2024. Return on equity is 19%. Return on capital employed is 17%, which was 22.6% in FY 2024, and EBITDA margins are quite decent. EBITDA margins are stable, like it was 16.6% in FY 2023, it was 18.9% in FY 2024 and 18.1% in 2025.
PAT margins are quite decent. It was 6.4% in FY 2023, 8.7% in FY 2024, and 8.5% in FY 2025. EPS is also increasing at a very good pace. It was only 5.38 per share at FY 2023, but it has increased up to 9.01, which means around 3.5 रुपए की ग्रोथ हो गई है अंदाजन. डेट टू इक्विटी रेशियो फॉल हो रहा है. नो डाउट कंपनी की बोरिंग्स बढ़ रही है, बट डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है. हाउ? इसका बेसिक रीजन ये है कि कंपनी ने डेट को बढ़ाने के साथ ही साथ इक्विटी को भी ग्रो किया है. जब आप डेट और इक्विटी को दोनों को साथ में ग्रो करते हैं तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कम होता है. अदरवाइज जैसे कि हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था कि कंपनी की बोरिंग्स 142 करोड़ से 218 करोड़ में पहुंच गई है, विच मीन्स बोरिंग्स तो बढ़ी है, बट बोरिंग्स बढ़ने के साथ ही साथ जब इक्विटी बढ़ जाती है तो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो जाता है. ठीक है, और इसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे की इनसाइट्स एंड इंटरप्रिटेशन. इससे मेनली क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं हम? रेवेन्यू क्लाइंब स्टेडीली फ्रॉम 443.8 CR to 559.2 CR, as we have already discussed it. PAT margins are also increased, improving in profitability. Profitability में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है. लाइक PAT margins मैंने आपको बताया था कि 6.4% से 8.5% तक पहुंचे हैं, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्वाइट डिसेंट माने जाते हैं. ठीक है. रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वेरी डिसेंट, नॉट वेरी पुअर, दे आर क्वाइट डिसेंट. एसेट एंड नेटवर्थ. कंपनी की आज की तारीख में जो नेट एसेट्स है वो 562.3 करोड़ रुपए के करीब है. नेट एसेट ऑल्सो ग्रो सब्सटेंशियली, रिफ्लेक्टिंग रिटेन अर्निंग्स एंड इक्विटी इन्फ्यूजन. बेसिकली कंपनी के अंदर अच्छा खासा इक्विटी का इन्फ्यूजन हो रहा है. कंपनी फ्रेश इशू कर रही है इक्विटी का, और साथ ही साथ रिटेन अर्निंग्स कंपनी की बहुत अच्छी है, जिससे कंपनी जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है. इसी वजह से आज कंपनी अपना पैसा रिटेन कर रही है बजाय डिविडेंड बांटने के. अगर हमें देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आर क्वाइट डिसेंट. आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्टिव है, कंपनी के जो बोरिंग्स है, कंपनी ने 218 करोड़ की जो बोरिंग्स ले रखी है उसको कंपनी रिड्यूस करना चाह रही है, और कंपनी 143 करोड़ की जो बोरिंग्स है उसको रीपे करना चाह रही है. तो मेन एक इशू आईपीओ इशू करने का एक रीजन ये रहता है. दूसरा, कंपनी को अपना एक प्लांट खोलना है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वैसे तो, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. एक ऑटोमेशन प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं मानकपुर में, जिसके लिए जिसको कंपनी इस इशू के थ्रू फंड करने वाली है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो कि नॉर्मली रहते हैं. ठीक है. मेजरली कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी के पास आज काफ़ी डाइवर्स SKUs है, जो हमने पहले बताया था. 1848 SKU है आज की तारीख में कंपनी के पास, विच मीन्स कंपनी हैज़ वेरी गुड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर फ्यूचर. कंपनी के एटलीस्ट आने वाले 4 से 5 साल तक कंपनी की ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और कंपनी अच्छे पेस पे ग्रो करने वाली है. इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज. कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे बने हुए हैं, और कंपनी के अंदर अच्छे खासे एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉयड है. स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट प्रेजेंस, एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो. कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू हो रहा है. हैवी रिलायंस ऑन टॉप 4 कस्टमर्स, दैट इज अराउंड 60%. कंपनी जो रेवेन्यू अर्न कर रही है उसमें से 60% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ उसके 4 बड़े कस्टमर्स से आ रहा है. कंपनी का उन पे बहुत हैवी रिलायंस है. अगर वो 4 कस्टमर्स में से अगर कोई भी कस्टमर छोड़ता है तो दैट मीन्स कंपनी की रेवेन्यू में या प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है. दैट इज अ पॉइंट टू कंसिडर. आपको इस पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं. अगर आपका एक लॉन्ग टर्म विजन है इन्वेस्ट करने का कि भाई एटलीस्ट 2 से 3 साल का बेयर मिनिमम अगर आप विजन रखते हैं, तो आपको ये पॉइंट कंसिडर फॉर श्योर करना ही चाहिए. और जो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी काफ़ी मॉडरेट सा है, डिसेंट सा है. 36 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कंपनी का. कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स से अच्छा खासा पैसा उठा रखा है. लाइक कंपनी का टोटल इशू ही 400 करोड़ के आसपास का है,
जिसके अंदर से कंपनी ने 120 करोड़ के अराउंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अपने एंकर्स से उठाया है। इनके मेन एंकर लिस्ट के अंदर जो मेन नाम है, कुछ बड़े नाम रहते हैं, वो है अशोक इंडिया, कैनरा रोबेको, बंधन म्यूचुअल फंड्स, एडेलविसिस, SBI, कोटक एट्सेट्रा। ये कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिन्होंने कंपनी को फंड किया है। ठीक है, इसी के साथ हम एक्चुअली कंपनी की अब स्ट्रेंथ्स देखने जा रहे हैं। कंपनी की बेसिकली स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? कंपनी का डाइवर्स एंड वाइड पोर्टफोलियो। कंपनी के जैसे हमने पहले बताया था कि बहुत अच्छे खासे SKUs है अभी कंपनी के पास, और कंपनी अच्छे खासे प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है। सो इससे दिखता है कि कंपनी का प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है वो बहुत डाइवर्स है। ठीक है, दूसरी बात, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बहुत अच्छी जगहों पे है। लाइक एक प्लांट दमन एंड दीव के अंदर है, एक सिलवासा के अंदर है, अब माणकपुर के अंदर कंपनी एक प्लांट लगाने जा रही है। जो कंपनी की बॉटम लाइन है वो कुछ इस प्रकार है। लाइक प्रॉफिटेबिलिटी में एक डिसेंट ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ठीक है, ग्रोथ है बट डिसेंट है, ऐसे कोई खास अच्छी भी नहीं है और कुछ बेकार भी नहीं कह सकता। बट कंपनी का जो मेजर क्लाइंट बेस है उसके अंदर से जो मेजर रेवेन्यू आता है वो कुछ 3-4 चुनिंदा क्लाइंट से ही आता है, जो कि मेजरली एक्सपोर्ट से आता है। ठीक है, और अगर बात करी जाए GMP की, जिसमें आई थिंक आप सभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। सो जो कंपनी की GMP है, आज की तारीख में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अराउंड 8 से 12% के बीच में कंपनी की GMP चल रही है। अगर एट द पॉइंट में बात करूँ तो कंपनी की आई थिंक 9-9.5% की 9 से 10% की GMP चल रही है एट दिस पॉइंट व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो यस, फाइनली इट्स द टाइम फॉर कंक्लूजन। अगर आप एक लिस्टिंग गेन चाहने वाले इन्वेस्टर है, लाइक जिसको बस IPO का अलॉटमेंट मिलते ही लिस्टिंग डे पे लिस्ट करके प्रॉफिट निकालना है, सो यस, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो मे बी आपको एक ये कंपनी अच्छा लिस्टिंग गेन देने के काबिल रखती है। लाइक अगर आप एक 15,000 का अमाउंट लगा रहे हैं तो नियरली 1500 अराउंड लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, और अगर आपका एक लंबा विजन है कि आप कंपनी में अगर इन्वेस्ट करके अगर रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए, तो नो डाउट ये कंपनी का एक बहुत अच्छा विजन और ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, जिसमें आप इस ग्रोथ के साझेदार बन सकते हैं। फॉर श्योर इट्स अ गुड कंपनी एज पर इट्स एनालिसिस आई एम सेइंग दिस, but after all it's not a buy or sell recommendation. Do all the business on your own risk. I am making this video only for educational purpose and not a buy or sell recommendation. So thank you all of you, आप लोग यहाँ तक वीडियो देखा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।